کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، مگر یاد رہے سریا کو کنکر سے ملا دیا جائے، پتھر کو سیمنٹ سے ملا دیا جائے، سیمنٹ کو ریتا سے ملا دیا جائے، ریتا کو پانی سے ملا دیا جائے، اور سب کی دوستی کرا دیا جائے تو اس کا نام سلپ پڑ جائے گا، اور جب اس کا نام سلپ ہو جائے گا تو اس کے اوپر سے ٹرین جیسی گاڑی گزر جائے گی لیکن اس کا بال بیٹا نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا اکیلے پڑھتے رہو گے برباد ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے آج کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، یہ پروگرام صحیح معنوں میں واقعی بہت خاص ہونے جا رہا ہے، اس لیے دستک سلام چھوڑ کر آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے دستک سلام۔ ناظرین، دستک سلام چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ میں ہوں عرفان صدیقی اور آج ہم موجود ہیں گورکھپور کے شہید عبداللہ نگر میں۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایک جلسہ غوث الورا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج پوری طرح سے تیار ہے اور یہاں پہ کون کون سے ناطخواں آ رہے ہیں، کون کون سے لوگ یہاں پہ تقریر کریں گے دوستو، اس کی ہم پوری جانکاری آپ کو دیں گے۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام کے جو کنوینر ہیں برک اللہ صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کیا پروگرام ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کون سے ناطخواں آ رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں جو تقریر کریں گے، تو ہم انہی سے جانتے ہیں۔ ہمارے چینل میں بہت بہت استقبال آپ کا ہے اور آپ ماشاءاللہ ہر سال اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں اور ان سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سجایا ہے۔ آپ کے اس غوث الورا پروگرام میں کیا خاص ہے اور کون کون لوگ تشریف لا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام میں شرکت کرنے والے آفاق مشاہدی نظامت کریں گے اور احسان شاکر جین پوری جو ناطخواں ہیں، مقرر کے لیے مولانا مصطفی رضا کشی نگر، اور خصوصی جو تقریر ہوگی حضور سید صغیر اشرف الجیلانی صاحب کی تقریر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو دوستو آپ نے سنا کس طرح سے پروگرام کے کنوینر جو بارک اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام میں کون کون سے خاص لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ناطخواں جو ہیں احسان شاکر صاحب آپ کا اعظم گڑھ سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو دوستو اس پروگرام کو دیکھنا بالکل مت بھولیے گا، پورا پروگرام دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب اور موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ بھی کچھ جانکاری دیں گے جلسے کو پروگرام کے بارے میں۔ تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارشد پرتیاشی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پہ آپ کا، اور آج کے پروگرام کی کیا خاصیت ہے تھوڑا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ جو ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ آئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس بار ہر سال کی طرح اس بار سال بھی حافظ برک اللہ صاحب بہت ہی خوبصورت اسٹیج اور یہاں کا پروگرام کراتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کراتے رہیں گے، لیکن ہر بار سے زیادہ اس بار انہوں نے یہاں پر جو بھی ویوستھا ہے اور جو بھی یہاں پر اچھے سے اچھے مقررین کو بلایا ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں سننے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس بار ہر سال کی طرح اس سال بہت بہتر کرنے کی کوشش کیا ہے، اور آپ کے سامنے ہے بہت ہی بہتر انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا۔ اور ابھی آپ 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس روڈ تک وہاں تک آپ دکھا سکتے ہیں، کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ پچھلی بار میں نے کور کیا تھا۔ نہیں سر، اس بار انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ آپ کو کورنگ ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی حافظ برک اللہ صاحب کا کہ اگلے سال ہمیں لگتا ہے کہ یہاں جگہ ہی نہیں ملے گا، اس روڈ تک انشاءاللہ تعالی لوگ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے کہ برک اللہ صاحب کو لمبی عمر دے۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ کس طرح سے آج کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، یہ پروگرام صحیح معنوں میں واقعی بہت خاص ہونے جا رہا ہے، اس لیے دستک سلام چھوڑ کر آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے دستک سلام۔ حافظ برک اللہ اشرفی صاحب کی عظیم الشان محفل ہے، ان کی محبت ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ذات تشریف لائی ہوئی ہے جن کا تعلق ہندوستان کی قدیم خانقاہ سے، کہ جس خانقاہ سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں حضرت اسلام گیلانی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو سجدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے، اور جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا کامیاب بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ذات بیٹھی ہوئی ہے، شیطان سرکار مقبول استثناء کی صورت میں انہیں تحیدت رہبر الہی شریف
सैयद अमीर उस-ज़ाकिरीन हुजूर शाह अल्लामा सैयद समीर अशरफी जिलानी की मौजूदगी है। दुआ करें अल्लाह हज़रत का साया दराज़ फरमाए, अल्लाह हमारे हज़रत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। तो बड़े करके बड़े मालिक यहाँ बैठे हुए हैं और मुबारकाना भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हुजूर दोस्त बात से मोहब्बत करते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि आप जिस मोहल्ले से गुजरेंगे सब आपको देख करके कहेंगे कि जाने वाला कोई और नहीं, सरकार गौसुल आज़म का दीवाना। तो शेर बस आप बोलते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि आपके दिन को अच्छा चाहिए कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े एक एक आदमी स्वागत कर रहे हैं, एक एक आदमी। अरे यार मेरे शेर को सुनकर नहीं तो कम से कम शहजादे सरकारी महबूब सिद्धा को देख कर तो बोले यार कि जमीन पर रहने वाले अल्लाह का शुक्र है कहीं भी जाते हैं तो आसमान मालूम कि जब लगाते हुए लफ्जों का सही कांपता नाम के नाम से शायर का सनम कांपता है देख कर नीर के पानी में शिफा की खूबी पहले यूनान के हिम्मत का गरीब कांपता। और पहले मैंने कभी कहा था अपनी निजामत के हवाले से कि जिंदगी का दर्द है दरिया की खामे हुए मुफलिसी का काम है शहर शहीद खामे हुए शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब और दीवाने हैं तैबा की गली खामे हुए और फिर जब तक जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं मेरे अशरफ की विलायत है अली खामे हुए फिर जब तक जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं मेरे अशरफ की विलायत है अली खामे हुए। ये बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हुजूर से साथ अल्लाह की मोहब्बतें लेकर मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की उस खूबसूरत आवाज के मालिक को जिसको सुनने का शरफ आप लोगों ने पहले भी हासिल किया है जिसका ताल्लुक आज़मगढ़ से है नाम एहसान शाकिर है मैं चाहता हूँ कि आप सभी लें आइए नामों से इस्तेमाल कर लें नारे तकबीर। मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले अपने सफ़र का आगाज़ बुज़ुर्गों के कलाम से करता हूँ। चंद शेर बरकतन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गूंज में इस अशार को आप समाअत करें। मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत कर लें। दाग फुरकते तैबा दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अगर लगे आपकी भी तमन्ना हो जो बात मतले में कही जा रही है तो मुझे यकीन है कि आप सब बोलेंगे। सुने कि दाग फुरकत तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। 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 काश गुंबदे खजरा काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। माइक ऑपरेटर साहब, जो ये आवाज़ बाद में आ रही है आप इसे ख़त्म कर दें तो बेहतर है। साथ साथ आवाज़ हो तो अच्छी बात है। मेरे बाद जो आवाज़ आ रही है
اسے آپ تھوڑا سا ختم کریں. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر لگے تو دعاؤں کا طالب. کہ میرا دم میرا دم میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. یہ میری تمنا ہے, اگر گورکھپور والوں آپ کی بھی تمنا ہوگی تو انشاءاللہ بولیں گے کہ میرا دم میرا دم میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر. ان کے آستانے کی ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. اور ایک شعر اور اگر لگے تو دعاؤں کا طالب. کہ ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. سنیں کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. ارے موت سے گلے مل کر موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع اس کلام کا سماعت کریں کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. سائل در اقدس سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا بھول معاد جاگزا. فکر معاش بد بلا عیش کی فکر کرنا بری بلا ہے.
आला हजरत कहते हैं फिक्रे मास बद बला, यानी ऐश की फिक्र करना बुरी बला है। भोले माद जा घुसा, तुझे जितना दुनिया हासिल करना है हासिल कर ले, मगर याद रख तू वहीं वापस पलट कर जाएगा जहां से तू आया है। तो आला हजरत क्या कहते हैं, फिक्रे मास बद बला, भोले माद जा घुसा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। और वही आला हजरत दूसरे मकाम पर फरमाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं हम मकान बना करके ऐश करेंगे, दुकान के बाद ऐश करेंगे, कंपनी के बाद ऐश करेंगे, स्कॉर्पियो खरीद करके ऐश करेंगे। लोग कहते हैं, मगर याद रहे ये दुनिया ऐश करने के लिए नहीं है। आला हजरत दूसरे मकाम पर फरमाते हैं आखिर ये दुनिया है क्या। तो आला हजरत कहते हैं दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा। विष बोलते हैं जहर को। याद रहे ये आवाज टकराए नहीं, बल्कि इसको बारीक कर दीजिए, बिल्कुल सादा कर दीजिए। विष बोलते हैं जहर को, गांठ बोलते हैं गठरी को। आला हजरत कहते हैं दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा। सूरत देखो सालिम की तो कैसी भोली भाली है। यानी दुनिया की सूरत देखो, इसी दुनिया में ताजमहल भी है, लाल किला भी है, भूल भुलैया घर भी है, सर्कस भी है, दुनिया की रंगीनियां हैं। इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बड़ी हसीनो जमील दुनिया है। मगर आला हजरत क्या कहते हैं, आखिर दुनिया है क्या। तो शहद दिखाए शहर पिलाए। ये दुनिया क्या है, शहद दिखाए शहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर खुश। कमाल की बात है, जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को खा जाती है। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए शहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर खुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया जाए, बड़े बड़े तजर्बा कर चुके हैं, अब दोबारा इसे आजमाने की क्या जरूरत है। क्या जो लोग चले गए, बड़े बड़े कर्रों पर आए, बड़े बड़े जालिमों साबिर बादशाह आए और सबके सब दुनिया से चले गए। उनकी इमारतें तो खड़ी हैं, लेकिन उनकी हड्डियों का भी आता पता नहीं है। उनके महल तो आज चमक रहे हैं, लेकिन उनका आता पता नहीं है। और आज नहीं तो कल हमारा भी जाने का वक्त आ ही जाएगा। ये दुनिया मुसलमानों दिल लगाने के लिए नहीं है। बड़ी प्यारी बात सूफियाए कराम फरमाते हैं कि दिल को दुनिया में रखो, दिल के अंदर दुनिया न रखो। सूफियाए कराम कहते हैं दिल को दुनिया में रखो, लेकिन दिल के अंदर दुनिया न रखो। जैसे कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहे खैर है, लेकिन पानी अगर कश्ती में आ जाए तो हलाकत है। तो दिल को दुनिया में रखोगे आफियत है, लेकिन दिल के अंदर अगर दुनिया भर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। याद रहे दिल के अंदर दुनिया भर लिया कारून बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया फिरौन बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया सद्दाद और बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया यसीद और बर्बाद हो गया, दिल के अंदर दुनिया भर लिया अकबर और बाद बर्बाद हो गया। बड़े बड़े आए जो क्या किए, अपने दिल के अंदर दुनिया को भर लिए, वे दुनिया में गिरफ्तार हो गए, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, वो दुनिया के हारिस बन गए, वो सबके सब तबाह बर्बाद हो गए। मगर मुसलमानों जो इस दुनिया को अल्लाह की रिसा के लिए ठुकरा दिया करता है, वो कभी फरामोश नहीं किया जाता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया आपको याद कर रही है। फारूक आज़म दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया फारूक आज़म को याद कर रही है। उस्मान हैदर दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया आपको याद कर रही है। शहीद आज़म दुनिया को ठुकरा दिए, लेकिन आज भी दुनिया शहीद आज़म को याद कर रही है। पता ये चला कि जो इस दुनिया को अल्लाह की रिसा के लिए कुर्बान कर देता है, अल्लाह उससे और ज्यादा दुनिया आता
फरमा देता है। तो याद रहे, आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमत फरमाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं पेश करूंगा अरकान इस्लाम, और मुख्तसर वक्त में बस 2 बातें मैं पेश करूंगा। बेनमाजियों का अंजाम और जबान और शर्मगाह, इन दोनों का गलत इस्तेमाल और उसका अंजाम, बस यही पेश करके मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। पहले अरकान इस्लाम को आप लोग समाप्त कर लीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 12 हदीस नंबर 2, यह हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। वहां इब्न उमर काल, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खामसिन, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रख दी गई है। वो 5 चीजें क्या है जिन पर इस्लाम की बुनियाद को रख दिया गया है। नंबर 1, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले नंबर पर अरकान इस्लाम में क्या रखा गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। नंबर 2, व इकामी सला और नमाज कायम करना। नंबर 3, व इताई ज़का और ज़कात अदा करना। नंबर 4, व सौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना। नंबर 5, वल हज और हज करना। नमाज मेराज की रात फर्ज की गई और ज़कात देना 2 हिजरी में, और याद रहे रोजा रखना तो वो भी 2 हिजरी में, जबकि हज करना 9 हिजरी में फर्ज होगा। अरकान इस्लाम ये 5 है। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रख दी गई है। पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने का क्या मतलब? तो याद रहे, मैं उसे समझाऊंगा मगर बात को समझने की कोशिश करें। याद रहे, पहले नंबर पर ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, और ईमान लाने के बाद नमाज कायम करो। ईमान लाने के बाद ज़कात अदा करो। ईमान लाने के बाद जब जब रमजानुल मुबारक का महीना आए तो 1 महीना रोजा रखो। ईमान लाने के बाद अगर दौलत हो, इस्तिताअत हो तो खाने काबा का हज करो। कमाल की बात है मुसलमानों, नमाज क्या है तो अमल है, ज़कात क्या है तो अमल है, रोजा क्या है तो अमल है, हज क्या है तो अमल है। पता चला आमाल का जिक्र बाद में हुआ और ईमान का जिक्र पहले हुआ। पहले नंबर पर क्या रखा गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ। मालूम ये हुआ कि उसी की नमाज कबूल होगी जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी के ज़कात को कबूल किया जाएगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी का रोजा रखना कबूल होगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी, उसी का हज कबूल होगा जिसके पास ईमान की दौलत होगी। अगर कोई जाकर मदीना में मर जाए, मक्का में मर जाए, तो मक्का और मदीना में मरने से जन्नती नहीं होगा, ईमान से जन्नती होगा। दुनिया में किसी खित्ते में रहकर अगर ईमान पे मरा है तो जन्नत का हकदार बनेगा। अगर खाने काबा में जाकर अगर बेईमान मरा है तो उठाकर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। असली दौलत क्या है? ईमान। अरकान इस्लाम में पहले नंबर पर क्या है? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अब कोई कहे, याद रहे मैंने क्या कहा कि नमाज अमल है, ज़कात अमल, रोजा अमल, हज अमल, ईमान अमल नहीं। ईमान है क्या? उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, आप भी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। याद रहे, ईमान मुजमल में पढ़ाया जाता है इकरारुन बिल लिसानी व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, ज़बान से इकरार करना और दिल से कबूल कर लेना, इसका नाम ईमान है। कबीलतों का नाम क्या है? ईमान। कबूल करने का नाम क्या है? ईमान। तो पहले नंबर पर ईमान है और दूसरे नंबर पर नमाज है। पहले नंबर पर ईमान है, तीसरे नंबर पर ज़कात है। पहले नंबर पर ईमान है, चौथे नंबर पर रोज़ा है। पहले नंबर पर ईमान है, 5वें
नंबर पर हज है। इससे बता दिया गया ईमान ही असल है। अगर कोई बंदा मकान की बुनियाद में पुआल भर दे, भूस भर दे और 36 इंच की दीवार चलाना चाहे तो भी उसकी दीवार न रुकेगी, क्योंकि बुनियाद खराब कर दिया। अगर कोई बंदा बुनियाद में सरिया डाल दे, सीमेंट डाल दे, बालू डाल दे, कंकड़ डाल दे, पत्थर डाल दे, पानी डाल दे, तो याद रहे उसने अपनी बुनियाद को पुख्ता कर लिया, कभी कर लिया, मजबूत बना लिया, मुस्तहकम बना लिया। अब 5 इंच का छेकर भी चला देगा तो उसका सिर्फ रुक जाएगा, क्योंकि बुनियाद मजबूत कर दिया है। और साथ साथ ये भी सुनो, हमारे वहां ये भी बीमारी है, हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम सलमानी साहब हैं, हम उस्मानी साहब हैं, हम इदरीसी साहब हैं। तो याद रहे इन सारी बातों को खत्म कर दो। अल्लाह की बारगाह में न सलमानी कबूल है, न अंसारी कबूल है, न खान कबूल है, न कोई और बिरादरी कबूल है। अल्लाह की बारगाह में ईमान कबूल है। अगर ईमान वाला है तो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो वो अल्लाह की बारगाह का महबूब है, वो अल्लाह की बारगाह का अजीज है। मगर आज हम लोग इसी में उलझे पड़े हैं। हम अंसारी हैं, हम पठान हैं। मगर याद रहे अगर अंसारी अपनी जगह अकड़ते रहे, पठान अपनी जगह अकड़ते रहे, सिद्दीकी अपनी जगह अकड़ते रहे, सलमानी अपनी जगह करते रहे तो क्या खराबी होगी? आइए समाप्त कर लीजिए। याद रहे मुसलमानों, अगर सरिया कहे कि मैं लोहा हूं, सीमेंट कहे कि मैं सीमेंट हूं, कंकर कहे कि मैं कंकर हूं, पत्थर कहे कि मैं पत्थर हूं, पानी कहे कि मैं पानी हूं, रेता कहे कि मैं रेता हूं, और सब अपनी जगह कर जाए और कोई मिलने को तैयार ना हो तो खराबी क्या होगी? जब गर्मी का मौसम आएगा तो पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। खराबी क्या होगी? जब बारिश का मौसम आएगा तो सरिया में जंग लग जाएगा। खराबी क्या होगी? जब मौसम में खजा आएगा तो बालू रेती क्या होंगे? तो सब हवा में उड़ करके बिखर जाएंगे। मगर याद रहे सरिया को कंकर से मिला दिया जाए, पत्थर को सीमेंट से मिला दिया जाए, सीमेंट को रेता से मिला दिया जाए, रेता को पानी से मिला दिया जाए और सबकी दोस्ती करा दिया जाए तो उसका नाम सिलेब पड़ जाएगा। और जब उसका नाम सिलेब हो जाएगा तो उसके ऊपर से ट्रेन जैसी गाड़ी गुजर जाएगी, लेकिन उसका बाल बीता नहीं होगा। पता ये चला अकेले करते रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो बस ये देखो ईमान वाला है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, बिरादरी कुछ भी हो वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बहस को समझ रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लीजिए असली दौलत क्या है? ईमान। तो अरकान इस्लाम में पहले नंबर पर क्या रखा गया? अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या हुआ? आमन्ना बिल्लाहि, हम अल्लाह पर ईमान लाए। आमन्ना बिर रसूल, और हम रसूल पर ईमान लाए। तो अल्लाह पर ईमान लाना यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, और नबी पर ईमान लाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे तौहीद, कलमे रिसालत दोनों को जमा करने के बाद ये बनता है कलमे तैयबा। यह हमारी बुनियादी चीज है। हम खुद भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, निकाह में इमाम साहब पढ़वाते हैं, और आखिरी वक्त में यही पढ़ने की तलकीन की गई है। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 140, रावी हजरत अबू सईद भी है और अबू हुरैरा, दोनों के दोनों हजरात बयान कर रहे हैं कि सरकार ने फरमाया लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। तुम्हारे बाप दादा अब तब दुनिया से जाने की तैयारी में हो तो उन्हें कलमा की तलकीन किया करो। तो याद रहे जब बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में होता है तो बंदे का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। उससे यूं न जाकर कहा जाए कि कलमा पढ़ लो, दादा कलमा पढ़ लीजिए, अब्बू कलमा पढ़ लीजिए, अम्मी कलमा पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, उस वक्त दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, बल्कि उसके करीब बैठ जाओ जो अब तक दुनिया से जाने की तैयारी में है। अब करीब में बैठ जाओ, अब बार बार बुलंद आवाज से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 8 मर्तबा नहीं, 16 मर्तबा नहीं, 32 मर्तबा नहीं, मुतवातिर पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, बेदर पे पढ़ते रहो। जब बार बार पढ़ोगे उसके दिमाग में
में यही गूंज उठेगा, वो भी पढ़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जो आखिरी वक्त में ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो फदखलल जन्नह, मरते ही उसकी रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो याद रहे, बाप दादा के जाने का वक्त आ जाए, घर में किसी के जाने का वक्त आ जाए तो उस वक्त रोना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ भलाई करनी चाहिए। अब पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करता है, रहम करता है, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाता है। तो ये हमारी बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो याद रहे मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दो जुज़ हैं, दो टुकड़ा, दो हिस्से, और ये दोनों जुज़ कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह कायम किया गया, मगर कुरान पाक में है। कुरान पाक में 114 सूरतें बाद 47वां सूरत का नाम सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत का नाम सूरह फतह आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है, जिक्र खुदा भी कुरान में और जिक्र मुस्तफा भी कुरान में, तारीफ खुदा भी कुरान में और तारीफ मुस्तफा भी कुरान में, हमदे खुदा भी कुरान में और नाते मुस्तफा भी कुरान में। अब मुसलमानों, ये आपने समाप्त किया, और जब इन्हीं दोनों को एक जगह किया गया, इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, तो यही हमारी बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे हम और आप पढ़ करके दिलो जान से मान करके हम इस्लाम में दाखिल होंगे, हम मुसलमान होंगे। तो अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर ज़कात अदा करना, और चौथे नंबर पर रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना, अब 5वीं नंबर पर हज करना। अब ये कि मुसलमानों, अरकाने इस्लाम में भी नमाज पहले है, ज़कात बाद में है। समझने की कोशिश करेंगे, ईमान के बाद क्या है? नमाज, और नमाज के बाद क्या है? ज़कात। तो अरकाने इस्लाम में भी नमाज पहले है, ज़कात बाद में, यानी ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया है। अब कुरान में भी जगह जगह अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, यानी नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो कुरान में भी ज़कात पर नमाज को मुकद्दम किया गया। ऐसा हो भी क्यों नहीं मुसलमानों? इसलिए नमाज को ज़कात के ऊपर मुकद्दम किया गया है कि मुसलमानों, नमाज क्या है? बदनी इबादत है, और ज़कात क्या है? माली इबादत है। नमाज बदन से अदा की जाती है और ज़कात दौलत से निकाली जाती है। अब दौलत से कीमती बदन है, इस बदन की हिफाजत के लिए लोग अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया करते हैं। और साथ साथ ये भी कि मुसलमानों, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, मगर नमाज और सियासत को बुलाकर मुस्तफा को दी गई है। इसीलिए नमाज को पहले रखा गया और ज़कात को बाद में रखा गया, और नमाज को ज़कात पर मुकद्दम किया गया। नमाज का ताल्लुक बंदे से और खुदा से, और ज़कात का ताल्लुक माल और गरीबों से है, क्योंकि माल उठाएगा ले जाकर गरीबों तक पहुंचा देगा। इसीलिए नमाज को ज़कात के ऊपर क्या किया गया? मुकद्दम किया गया। अब ये कि मुसलमानों, ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी काम क्या है? तो जहां कहीं भी बंदा रहे, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करे। और उसके बाद क्या करे? तो याद रहे, ज़कात देना क्या है? नमाज तो जब तक जिंदा है, होश हवास में है, उसके ऊपर फर्ज है, जरूरी है, लाजमी है। लेकिन ज़कात देने का मामला क्या है? तो ज़कात देने का मामला ये है, अगर खुद कंगाल है, गरीब है, तो वो कहां से देगा? उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। और जो मालदार है भी, उसके ऊपर रोजाना ज़कात देना फर्ज नहीं है, साल भर में 1 मरतबा देना फर्ज है। लेकिन नमाज रोजाना 24 घंटा में 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना क्या है? जरूरी और लाजमी है। अब आइए, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो? सूरह ताहा आयत नंबर 124 पारा नंबर 16।
वमन आरद अन ज़िक्री, और जिसने मेरी याद से मुंह फेर लिया, मेरी बंदगी से मुंह को फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। अल्लाह उसकी जिंदगी को तंग फरमा देता है जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे कयामत के दिन अंधा करके उठाएंगे, नाबीना करके उठाएंगे। पता ये चला कि जो लोग भी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की बंदगी नहीं करते, अल्लाह की तस्बीह व तहलील नहीं करते, उनकी जिंदगी को तंग फरमा दिया जाता, और आखिरत में उन्हें कब्र से जब निकाला जाएगा तो अंधा करके निकाला जाएगा। पता ये चला जिक्र इलाही से जो गाफिल आता है उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई। अब मुसलमानों, ये कोई कहे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो बेनमाजी है मगर अमीर है। अमीर होना अलग है और सुकून पाना अलग है, ये बात याद रहे। अमीर होना अलग है और सुकून का पा जाना अलग। ये अगर कोई ख्याल करता हो कि दौलत के अंदर सुकून है, दौलत के अंदर कामयाबी, दौलत के अंदर बुलंदी है, तो आइए मैं दिखा रहा हूं। आप अपने मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जाइए और जो मेन सड़क है, सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मज़ार है और उसी सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं बादशाह का मकबरा है। जाकर देखिएगा तो आपको पता लगेगा हुमायूं की कब्र से ये सदा आ रही है, ऐ दुनिया वालों मेरी बादशाही मिट गई, निजामुद्दीन औलिया की फकीरी जिंदा है, इनकी विलायत जिंदा है। जो भी आ रहा है सब उन्हीं के पास जा रहा है, कोई हमारे पास नहीं आ रहा है। अब पूछो बादशाही किसे कहते हैं? तो दौलत का नाम बादशाही नहीं है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह का महबूब हो जाए वही तो बंदा बादशाह है। हम मुसलमान, हमने क्या समझ रखा है कि दौलत हासिल करो और दौलत से हम कामयाब हो जाए। क्या ये समझ रखा है कि बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ हम कामयाब हो जाए, बहुत बड़े हकीम बन जाओ हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं। याद रहे, मैं 4 हकीमों का नाम ले रहा हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं पेश करूंगा। 4 हकीमों का, और चारों को मैं बता रहा हूं ये चारों मरे कैसे हैं। 4 हकीमों का नाम ले। अब कैसे हकीम मालूम है? आज के 1000 डॉक्टरों को जमा किया जाए तो एक हकीम का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे हकीमों का नाम लूंगा। याद रहे, पहले हकीम का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु फलसफा यूनान का मुअल्लिम अव्वल कहलाता है। ये कैसे मरा था? सिल की बीमारी से मर गया था। इसके फेफड़ों में सूजन हो गया, खून की उल्टी जारी हुई और उल्टी करते करते तड़प तड़प करके मर गया था अरस्तु। दूसरा हकीम, उसका नाम क्या है? बोकरात। बास लोग सोकरात भी कहते हैं। बोकरात जो था, तो याद रहे मुसलमानों, ये कैसे मारा था? फालिस के मर्ज से मर गया था। बहुत बड़ा हकीम था। बोकरात का एक ऐसा बारूद शागिर्द था जिसका नाम ही लोगों ने अफलातून रख दिया था। ये जो भी मैं नाम ले रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत हिकमत जानते होंगे उन्हें मालूम होगा। तो याद रहे, बोकरात का जो शागिर्द था उसका नाम ही अफलातून रखा गया। ये कैसे मरा था? बरसाम से मरा था। पूरे इसके सीने में, फेफड़ों में पानी भर गया था और सीने के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया था। अब इन तीनों का एक बाप पैदा हुआ दुनिया में, जिसको दुनिया जालिनोस कहती है। इसका असली नाम कलाडेसन गेलन बताया जाता है। याद रहे, 131 ईस्वी में पैदा हुआ था, अब 201 में मरा था। 70 साल इस दुनिया में रहा था, सारे हकीमों को पीछे छोड़ दिया था, सारे हकीमों को पीछे छोड़ गया। ये जालिनोस 70 साल इस दुनिया में रहा, 2000 साल पुराना ये हकीम है। बताइए कैसा हकीम होगा कि आज 2000 साल के बाद भी उसी के नाम पर खमीरा जालिनोस बिका करता है, उसी के नाम पर खमीरा जालिनोस बिका करता है। कैसा हकीम होगा? आज बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, 100 साल के बाद, 50 साल के बाद पता नहीं लग रहा है कहां कोई आए थे डॉक्टर, कोई आए थे सर्जन, मगर वो कैसा हकीम होगा कि 2000 साल के बाद भी उसके नाम पर खमीरा बेचा जा रहा है, उसके नाम पर दवाइयां बेची जा रही है। मगर ये कैसे मरा था? सुन लीजिए। ये पेट का बहुत बड़ा हकीम था, अब पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मर गया था। आखिर खुदा ने ऐसा किया क्यों?
सांप का मंत्र जानने वाला सांप से मर जाता है, कैंसर का इलाज करने वाला कैंसर से मर जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है ताकि हकीम का गुरूर टूट जाए, डॉक्टर का घमंड टूट जाए। इसीलिए अल्लाह ऐसी मौत देता है ताकि दुनिया बेबस होकर कहे एक ऐसा हाकिम है जिसके सामने किसी की चलने वाली नहीं है। बात को समझिए। आप पता लगाइएगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जरा अंदर जाकर के पता लगाइएगा कौन कैसे मरा है, कौन कैसे मरा है, अंदर घुस करके पता लगाइए। ये जो जालिनोस में बता रहा हूं, कैसा हकीम था आप अंदाजा लगाएंगे। पेट का ये बहुत बड़ा हकीम पेट के दर्द से चिल्लाते चिल्लाते मरा, लेकिन मरने से पहले जालिनोस 2 गोली तैयार किया था। याद रहे, मरने से पहले 6.5 महीना पहले बड़ी मेहनत करके जालिनोस 2 गोली तैयार किया, और 2 गोली तैयार करके एक गोली पर लोहा लिख दिया था और दूसरी गोली पर पानी लिख दिया था, और कहा था ऐ मेरे शागिर्दों, जब तक मैं जिंदा रहूं इस पर अमल न किया जाए, जब मैं मर जाऊं तब इस पर अमल किया जाएगा। जिस पर मैंने लोहा लिखा है, मेरे मर जाने के बाद लोहे की चादर लाना, लाकर जमीन पर रख देना और लोहे वाली गोली को उसी लोहे पर रख देना। और जिस पर मैंने पानी लिख लिया है, मिट्टी का घड़ा लेना, पानी भर लेना, उस गोली को उठाकर पानी में डाल देना, फिर देखना क्या होता है। मगर ये काम उस वक्त तक न करना जब तक कि जालिनोस मर न जाए। ये मैं किस लिए पेश कर रहा हूं, ताकि आप समझेंगे कितना बड़ा हकीम था। अब 2 गोली तैयार किया था, एक पर लोहा लिख दिया था, दूसरे पर पानी। और जब जालिनोस पेट के दर्द से चिल्ला चिल्ला करके मर गया, अब उसके शागिर्दों ने कहा कि ठीक है, अब उसकी गोली को निकाला जाए, जिस पर लोहा लिखा है, एक दूसरे पर पानी लिखा है। जब लोहे की चादर लाए और ला करके रखे, और जैसे लोहे वाली गोली को लाकर लोहे पर रखे, उस वक्त के दानिश्वर देख करके हैरान हो गए, लोहा पानी बन करके बहने लगा था। और जिसको कहा था पानी में डालने के लिए, जैसे मिट्टी का घड़ा लिए उसमें पानी भरे, अब पानी वाली गोली को जब डाले पानी के घड़े में, तो पानी लोहा बन गया था। उस वक्त के दानिश्वरों ने कहा था, गोया जालिनोस बता करके गया है, ऐ दुनिया वालों, मेरे पास वो ताकत थी, अगर मैं चाहता तो लोहे को पानी बना देता और पानी को लोहा बना देता, लेकिन मैं भी मौत से बच ना सका। बात को समझने की नहीं। तो याद रहे, इस तरह की तारीखें आपको मिलेंगी। क्या नहीं सुने? शद्दाद आया था, आकर के जन्नत बनवाया, अपनी बनाई जन्नत में ना जा सका। अल्लाह की जन्नत तो दूर की बात हो, अपनी बनाई जन्नत में दाखिल ना हो सकते। तो याद रहे मुसलमानों, ये दुनिया मोहब्बत करने के लिए नहीं। जो आला हजरत ने कहा है, दुनिया को तू क्या जाने, ये विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। और हम और आप कहते हैं हम मकान के मालिक, हम दुकान के मालिक, हम हवेली के मालिक, हम खजानों के मालिक, हम बैंक बैलेंस के मालिक, हम स्कॉर्पियो के मालिक। बताइए, दावा करते हैं कि नहीं करते हैं? अचानक जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है, तो कलाई से घड़ी को खोल लिया जाता, सूट बूट को उतार लिया जाता, जल्दी जल्दी नहलाया जाता, नहला करके जनाजा तैयार करके दरवाजे पर रख दिया जाता। और हमारी माँ बहनों का हाल ये है कि मरने से पहले कोई दावा करता है, ये मेरी माँ है, ये हमारी बीवी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी खाला है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी माँ है, ये हमारी नानी है, ये हमारी दादी है। मरने से पहले सब के सब दावा ठोकते रहते हैं, लेकिन जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है, तो होता क्या है? गले से हार को निकाल लिया जाता, सर से मांगटीका को खोल लिया जाता, हाथों से कंगन को उतार लिया जाता, पैर से पासे को उतार लिया जाता। ये बेवफा दुनिया है, जिस दुनिया के लिए हम रात को दिन एक कर दिए हैं। याद रहे मुसलमानों, ये दुनिया दिल लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कुर्बानी देकर आखिरत आबाद करने के लिए आए हैं। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को 300 साल तक नहीं रुलाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम को 80 साल तक नहीं रुलाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के जेल में बंद ना किया जाता। अगर ये दुनिया कुर्बानी के लिए ना होती तो अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहिम अपने बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ दो। जब बच्चा बड़ा हुआ तो हुक्म हुआ, बच्चे के गले पर तलवार चढ़ा दो। और इसी पर बस नहीं हुई, बल्कि नारी नमरूद ने आपको छलांग भी लगाना पड़ा। हमारे नबी ताइफ में गए काफिरों को समझाने, इतनी पत्थर की बारिश हुई कि
सर से लेकर पांव तक हमारी नबी खून में सराबोर हो चुके थे। और बहस को आगे बढ़ाया जाए, इमाम हसन को एक दो बार नहीं सैकड़ों बार जहर दिया गया। और बहस को आगे बढ़ाया जाए, उस्मान गनी पर एक हफ्ता खाना खाना पानी बंद रखा गया और भूखे प्यासे कुरान पढ़ते में शहीद कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, हजरत मौला अली फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, इब्ने मुल्जिम ने हमला किया और आपने कहा था रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। 19 रमजान को हमला हुआ और 21 तक तकलीफ में रहे। मुसलमानों, ये दुनिया कुर्बानी के लिए है। फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सल्लल्लाहु नबी पर खड़े थे और आपके ऊपर हमला किया गया। आप भी 2 से 3 दिन तक तकलीफ में रहे। और आगे बढ़ते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर इंतकाल फरमाने से 15 दिन पहले बुखार में गिरफ्तार हुए। और बहस को आगे बढ़ाते हैं, मुसलमानों, इसी दुनिया हिंदुस्तान में अकबर बादशाह ने क्या किया था, वो जद्दी अल-क़सानी को जेल की सराखों में रख दिया था। पता ये चला कि ये दुनिया मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ कुर्बानी दोगे तो वहां जाकर आराम करोगे।